عزیزہ گیری فرحی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چین ہے نا قراری کسی پل کوئی دل کی دوا تو بتائے. چین ہے نا قراری کسی پل کوئی دل کی دوا تو بتائے. نہ تو ان کی پڑھوں یا میں رہوں کچھ سمجھ میں نہیں آئے مجھ کو. نہ تو ان کی پڑھوں یا کہ روؤں کچھ سمجھ میں نہیں آئے مجھ کو. اللہ اللہ وہ کیسی جگہ ہے جو دیار حبیب خدا ہے. اللہ اللہ وہ کیسی جگہ ہے جو دیار حبیب خدا ہے. دیکھنی ہو اگر جس کو جنت وہ مدینہ نگر دیکھ آئے. دیکھنی ہو اگر جس کو جنت وہ مدینہ نگر دیکھ آئے. اب نہ گھبراؤ اے عاشقوں تم سامنے دیکھو آقا ہمارے. بدروں کی وہ بارش نبی پر اور نبی یہ دعا کر رہے ہیں. بخشوانے چلے آ رہے ہیں سر پہ تاج شفاعت لگا کر. میرے چین ہے نا قرار کسی پل کوئی دل کی دوا تو بتائے. چین ہے نا قرار کسی پل کوئی دل کی دوا تو بتائے. نہ تو ان کی پڑھوں کہ میں روؤں کچھ سمجھ میں نہیں آئے مجھ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. پردے خواتین ہمارے امام والے سے گزارش ہے کہ آپ کے بھی مقررہ عالمہ اور فاضلہ بی شہناز بیگم صاحبہ روڈا سے تشریف لا چکی ہے. کچھ ہی پردے اس کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. اس لیے پردے خواتین ہمارے امام والے سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جاؤ. تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ. دکھو کرو کیا پتا کہ پورا پنڈال اللہ بھر دو. بولے سبحان اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے 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 وہاں خدا کے قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے. اللہ کے پیارے بندے کیوں مسکرا رہی ہے؟ اللہ کے دل کی خاطر ہے. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا کے قریب ہوتا ہے. ایسے مجلس میں بیٹھنے والا 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 تو کیا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا
پردے خواتین ہمارے ماں اور بہنیں سے گزارش ہے آپ کے پاس وقت مرتب ہے آپ کے بیچ مقرر عالمہ فاضلہ بی بی شہناز بیگم آپ لوگوں کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر صرف آئی ہے کہ دارالعلوم عثمان غنی اور محمد پور میں بہن ہے بھائی ہے سب سے ملاقات کریں گے چند بار دین کی بھی ہو جائے گی آئیے اسٹیج پر میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے عزیزہ روزی سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں پردے خواتین ہمارے ماں بارے سے گزارش ہے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آئے گا نہیں اس سے جتنا جلد ہو سکے آ جاؤ اور اسٹیج پر بی بی شہناز بیگم صاحبہ روکا سے تشریف لائی ہے جلوہ افروز ہے کچھ ہی پل اور کا پروگرام شروع ہونا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا نے کیا بنائی ہوں دیسی صورت محمد خدا نے کیا بنائی ہوں دیسی صورت محمد کی نظر آتی ہے پردے پر دیکھے صورت محمد کی نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے حضرت اور اس کے بعد پردے کے اوپر بی بی آسمہ بیگم سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم خدا کی قسم تجھ میں بلبل کے چہک گل کے مہک سب کچھ ہے پردے خواتین ہماری ماں اور باوے سرزمین محمد پور سے گزارش ہے وقت کو قیمتی سمجھو آپ کی محبت میں بی بی شہناز بیگم صاحبہ روکا سے تشریف لائی ہے آپ کی محبت میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے اہل خاندان کو چھوڑ کر اپنے تمام پیشہ بلوغ روکا کو چھوڑ کر صرف ایک نسبت سے آئی ہے کہ محمد پور کے اندر بھی ہماری پردے خواتین ماں اور بانی ہے اس کو بھی دین کی بات سکھائیں گے ان کو بھی دین کی بات اپنائیں گے اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ ہی پل میں بی بی شہناز بیگم صاحبہ روکا کی تقریر شروع ہونے ہی والا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تقاضوں کو دبا دے اور کاموں کو چھوڑ دے منڈتے ہوئے سیلاب میں تشریف لائے کیونکہ یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میں کدا نہیں ساتھی یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میں کدا نہیں ساتھی یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں مائک پر بی بی آسمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہ میں سنائیے بھائی الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. مائک کو منہ میں سٹا لو مائک کو منہ میں سٹا لو الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قوم
पूछा जो इनसे आपका पर्दा क्या हुआ, पूछा जो इनसे आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगे अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा पढ़ी हूँ जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हिदायत दी गई है कि ए नबी अपने बीवियों और अपने बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म देके बाकियों पर थोड़ी सी चादर डाल ले। यानी कुरान पाक की इस आयत से पर्दा का हुक्म नाज़िल हुआ है। कुरान पाक की दूसरी आयत में वलयस्रिबीन बिखुमूरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न के औरतें अपने ओढ़नियों को सीने पर डाल लिया करे। इस आयत से भी पर्दा का जान में इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र व लहाद, जुल्म व जहालत के बातिल छीटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकियां खत्म हुई, कुरान पाक की अदल व इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूं को मुसावात और बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म व सितम के चक्की में पिस रही थी, मुसाब के आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने इनको जिल्लत बस्ती के गाड़ी से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। जहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों को बराबरी की गीत गाते जा रहे थे। अगर तारीख की औरात को दिया जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों को फजीलत और बरतरी दिखाई देगी, लेकिन पूरी दुनिया में शैतानी डंका बजने लगे। मुसलमान औरतों को इसकी घरली जहां दीवारों से निकालकर सुआम पर बदनाम और रुस्वा करने की अंधा कोशिश की गई। ऐसे समा महफिल बनाकर डंडा व सफारत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा के मुखालिफ में लाखों शिकायत सिया कर दिए गए। इनके सिर पे एक ही सदा देंगे, पर्दा के दरमियान को चाक और रेसा रेसा किया जाए और औरत को बेलगाम छोड़ दिया जाए, वो जो चाहे गुल खिलाए। चनांचा तजुर्बा शाहिद के पर्दा से दीदी और दुनिया फायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसान है। बेपर्दगी से खानदान और मुसरात की दुनिया यहाँ कहीं में स्टेज पर नसीब लो। बेपर्दगी से बहाना की तारीफ सामने आती है। बेपर्दगी से अयारी व मकारी, जिनाकारी व बदकारी आम होती है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़ा खत्म होती है। बेपर्दगी से फतना व फसाद का दरवाजा होता है। बेपर्दगी से मर्दों की दिल व दिमाग में बुरे सावत के गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मुनाज़रा मजबूर निगरानियां होती रहती हैं। पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलती हैं। पर्दा को एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाता है। औरत के लिए पर्दा का दो दंडी से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि पर्दा कैद है, पर्दा को हैसियत बनाया जाता है। आज मगरबी तहजीब ने औरत को शर्म वगैरह की दौलत को लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती। मगर दोस्तों, अगर पर्दा होगा तो भयानक जाम से हिफाजत होगी। अगर पर्दा होगा तो बाकी दामन बातिल का चेहरा अवकाश और बदकारी लोगों की नजरों से महफूज रहेगा। अगर पर्दा होगा तो इनके हुस्न व नुस्ख पर किसी किस्म का दाग व धब्बा न आएगा। अगर पर्दा होगा तो मर्द औरतों के दिल व दिमाग में बुरे सावस के गंदे ख्यालात पैदा न होगा। अगर पर्दा होगा खानदान वाले औरत को इज्जत के दाव देंगे। अगर पर्दा होगा तो जहनी व जिस्मानी कोपों में इजाफा होगा। अगर पर्दा होगा तो फतना व फसाद और फवाहिश का दरवाजा बंद होगा। अगर पर्दा होगा तो औरतों के हया बाकी रहेगी। अगर पर्दा होगा तो शरीयत के हुक्म पर अमल होगा। अगर पर्दा होगा तो आखिरत में जात का सामान होगा। मोहतरम दोस्तों, नतीजा यह है कि आज हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती कहलाते हैं, वह भी ऐसी ज़हनी गुलामी का शिकार है। खास तौर पर अंग्रेजी तालीम के फताफता को इसमें ज्यादा मुब्तला है और वह भी पर्दा के मामले में इस्लाम दुश्मन के साथ है। और पर्दा के मामले में वह कहती है, उन्हीं की महफिल सवारती हूँ चिराग मेरी रात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारती हूँ चिराग मेरी रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रही हूँ ज़बां मेरी बात उनकी। मोहतरम हज़रात, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मुनाज़रा मजबूर निगरानियां होती रहती हैं। पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलती हैं। ये इस यूरोप अमेरिका की दीन की नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले पर्दा ख़वातीन हमारी माँ और तुम्हारे से गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके उम्मत करते हुए
सैलाब की तरह तशरीफ लाओ, चूंकि कुछ ही पल में आपकी बड़ी बहन शहनाज बेगम साहिबा रोहता से तशरीफ लाई है आपकी मोहब्बत में। कुछ ही पल में उनका बयान शुरू होने वाला है। ये कुछ काम आने वाला नहीं है, न घर काम आएगा, न दौलत काम आएगी, न जेवर काम आएगा, न माल और दौलत मकान बिल्डिंग काम आएगी तो सिर्फ आपकी आमाल ही काम आएगी। पर्दे खवातीन हमारी माँ और बहनों से गुजारिश है तो मंडते हुए सैलाब की तरह तशरीफ लाए। कुछ ही पल में आलिमा और फाजिला बीबी शहनाज बेगम साहिबा रोहता से तशरीफ लाई है। कुछ ही पल में बयान उनका शुरू होने जा रहा है। माइक पर बीबी आसमा बिन्त मोहम्मद बलुद्दीन मोहम्मद को। ये इस यूरोप अमेरिका की 3 की नौजवान लड़कियां बारिश सा दुपट्टा गले में डालकर और चश्त और बारिश सा लिबास पहनकर खुलेआम घूम रही है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारे कामयाबी कुफ्फार मुश्रिकीन ईसाइयों के बातों में नहीं बल्कि हमारे कामयाब व कामरानी खुदा वाहिद ला शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके और इस्लामी इत्मीनान के अंदर है। इस्लाम के पासबानों हज़रत आसमा हज़रत आयशा की बहन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली हैं। एक बार बारिश का लिबास पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने आ गए तो सरवरे कायनात ने नजर को फेर लिया और ये इरशाद फरमाया कि ए आसमा जब औरत बालिग होने का हुक्म को पहुंच जाए तो इसके जिस्म से कुछ दिखना जायज नहीं, सवाए इसके चेहरे और इसके हथेलियों से इस बात का साफ पता चलता है कि बारीक लिबास पहनना भी पर्दा के खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरतियों से चढ़ी हुई है तो आंखें नफ्स के सबसे बड़ी चोर है। इसलिए रब्बे ज़िला ने सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। जैसे कि कुरान पाक में आया है कुल्लिल मुअमिनीना यग़ज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिन्ना व कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना। एक बार का किस्सा है कि हज़रत उम्मे सलमा स्टेज को 1 मिनट के लिए आप लोग खाली कर दो। निकाह के साथ जो ग्रुप है, निकाह के साथ जो जमात है वो स्टेज पर है, बाकी बच्ची नीचे चले जाओ। आइए पर्दे खवातीन हमारी माँ और बहने मोहम्मदपुर के रहने वाले प्यारे अल्लाह के बंदे, कुछ ही पल में आपकी बड़ी बहन बीबी शहनाज बेगम साहिबा रोहता से आपकी मोहब्बत में आई है अपने आलो आयाल को घर छोड़कर। क्योंकि एक मोहब्बत, एक निस्बत, एक ही बहाना सीखना और सिखाना। तो आइए माइक पर वो लोग हैं जो लोग मुकालमा तैयार की है। ये बच्ची आपके मदरसे में पढ़ करके इतना एक मुकालमा जिसको ड्रामा कहते हैं अपने पर्दे खवातीन और बहने में ये पाई जाती है। शुरू कीजिए निकाह के साथ और कौन है वो तैयार हो जाए। रबड़ नहीं है इस पे, कौन है लिखात के साथ बोलो ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर्दे खवातीन हमारी माँ और बहनें, ये लड़कियां इसी मदरसे में पढ़ती है। दुनिया की औरतें किस तरह रहती है, जिंदगी किस तरह गुजारती है, उसका एक ट्रेलर, एक फिल्म, एक ड्रामा, एक नाटक पेश करेगी। उससे आप हज़रात अपने दिल में बिठाइएगा, अमल कीजिएगा। यहाँ भी खुश रहेंगे, वहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। मोहतरम हज़रात, अब हम कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज के माहौल में बड़ी ही नहीं छोटी छोटी बच्चियां भी फैसले का शिकार हो गई हैं। छोटे कपड़े बुरा असर साइड हो जाए। आप भाई के लिए मर्द का प्रोग्राम है, बनाने वाली भाई बहन और से अल्लाह का बरकात ने वो अशकर बनाया है। चुनांचे ये बात बताने के लिए मैं मुकम्मल पेश करने के लिए दावत देती हूँ शुक्रानी गुलेसा नस्मा और उनकी सहेलियों को मुकम्मल पेश करें। अलग अलग ग्रुप रहो ना इस तरह। हाँ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहन तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड
मुझे कलर अच्छा लेना था आजकल के फैशन के हिसाब से। वाह, तुम मेरी यहाँ पर कलर की बात कर रही हो? वहाँ पर एक लड़की कॉलेज में एक ही कलर की ड्रेस पहन कर आती है। चलो चलो उसी से चलकर पूछते हैं। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी से भी गया बात करे तो पहले सलाम करे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेडीज सलाम का मतलब क्या होता है? देख मीर, तुम पे सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और बरकतें हो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कलर होकर क्यों आती हो? इधर आगे आ जाओ, बीच में सामने आ जाओ, यहाँ मुंह में सटा के बोलो मुझे। तुम इतना काला काला कलर होकर क्यों आती हो? तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें सेम फील नहीं होती? कॉलेज हो या कोई भी रिप्लेस, ये पर्दा मेरी सेफ्टी के लिए है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? ओ, इसमें कैसी सेफ्टी? जब एक पर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके ऊपर दूसरा कातिल माइन करते हैं, और जब हम पर्दा करते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से अल्लाह मौला हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो और करार के साथ रहो और कभी ज़बान ज़हालियत से अपनी नुमाइश ना करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। सब में और हमें बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौन की औरतें हैं और औरत की मतलब ही छुपाने जाने वाली है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये एक मिल्क चॉकलेट है, इसे मैं फेंक रही हूँ। ये खुली हुई चॉकलेट है, इसे भी फेंक रही हूँ। मुंह में सटा के बोलो। अब आप बताइए, इसमें से आप किसको सिलेक्ट करोगे? आपने ये वाली सिलेक्ट क्यों की है? क्योंकि ये पूरी फेक है। ठीक, बाकायदा औरत की मिसाल इस फेक चॉकलेट जैसी है, जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं होती। वहीं बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है, जिसमें हर तरह की नापाकी और गंदगी होती है, और उसको दुनिया की नजरों में कोई भी अहमियत नहीं होती, और उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। क्या इस्लाम के सारे औरतों पर ही पाबंदी है? क्या इस्लाम के मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कुरान में अल्लाह मौला ने औरतों पर पर्दे की हुक्म दी है और मर्दों पर पाबंदी लगाई है। ये मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरो तो अपनी निगाह नीचे झुका लो, ताकि किसी गैर महरम औरत पर हमारी नजर ना पड़े। तो क्या हो गया? ये अल्लाह ताला मर्द को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों? बहन, तुम गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया है क्योंकि औरत किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये एक हिरन है और एक पत्थर है। अब आप बताइए, इसमें से आप किसको संभाल कर रखोगे? ऑफकोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल कर रखते हैं? औरत की मिसाल हीरे जैसी है, जो बहुत कीमती और नाजुक होती है, इसीलिए उसे छुपाकर हम तिजोरी में रखते हैं। अगर हम सबके सामने उसको नुमाइश के लिए रख देंगे तो वो सेफ नहीं रख पाएंगे। मैंने ये भी देखा है, आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने फोटो क्लिक करके अपलोड कर देती हैं। ये मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरह की पर्दगी है। हमारे वाली फोटो पर गैर मर्दों की नजर पड़ती है, वो हमारी फोटो देखकर लाइक और कमेंट करते हैं, जो कि सरासर के पर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फोटो अपलोड ना करें और सभी को तामीर दें। वाकई में औरतों को इस्लाम में इतना मुकाम दिया गया। आज हमें पता चला हम आम औरत नहीं, हम खास औरत हैं। खास औरत के पर्दा करने की पाबंदी है। आज हमें पता चल गया पर्दे की इम्पोर्टेंस। आज से हम भी वादा करते हैं पर्दे की पूरा एहतमाम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, क्या कर रही है? नहीं, जम गया मत बोला देते हैं।
माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा। ये तमाम बच्ची इस मदरसे के साए में पढ़ती है। ड्रामा, नाटक जो कहिए उन्होंने मुकदमा पेश किया है। आइए, आपकी बड़ी बहन कुछ ही पढ़ने जल्द अफरोज होंगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक तकलीफ देना चाहता हूँ, एक जहमत देना चाहता हूँ। ये खाली जो बहुत गुफ्तगू कर लीजिए कि पूरे गांव से औरत आ रही है, जगह पढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। चाची, खाला, नानी, दादा, नानी, आगे आ जाइए, बस आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बच्चे आ जाइए, आ जाओ आप लोग। मामी इधर सुनिए, इधर आइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, देखिए पूरे गांव से औरत आ रही है, जगह कम पड़ सकती है, इसलिए खाली जगह नहीं होगा। आगे आ जाइए, बिल्कुल करीब आ जाइए, आ जाइए। तो जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, 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 तो क्या वहाँ खुदा भी करीब होता है। ऐसे मजलिस में बैठने वाला, 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 तो क्या बड़ा ये खुश नसीब होता है। अच्छा, हमारी गाँव ही के ये पर्दे खवातीन माँ और बहनें, दादा दादी सब है, और आपको मालूम है कि ये वारिस का ननियाल आपके मोहम्मदपुर ही में। सब औरतें हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह हज में जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हज में जाएंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोलिए हज में जाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा। बोलिए नहीं हुआ, हाथ उठाइए, सब मेरा ही अपना ही है। बोलिए इंशाअल्लाह अल्लाह हज करा दे मुझे। सब हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, देखिए कहना है हज वो दौलत है जिसको मिल जाए खुदा का रसूल मिल जाएगा। इसके हज के हवाले से पेश कर रहा हूँ, वो जमजम के पानी है। जमजम के पानी की वो बरकत है, अगर एक बूंद भी अगर पी लेंगे आपके अंदर कोई भी बीमारी है अल्लाह शिफा कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कि जहाँ से मैंने ज़म-ज़म का जब पिया पानी, 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 तो क्या हर मरज़ का उतर गया पानी। मैंने ज़म-ज़म का जब पिया पानी, 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 तो क्या हर मरज़ का उतर गया पानी। लोग माँ बाप को भुला देते हैं। मैं कहता हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो क्यों करोगे खिदमत उनकी, करोगे खिदमत उनकी। आइए हजरात, कुछ ही पल में आपकी बड़ी बहन इंतजार में है कि आपसे हमसे बात करेंगे। आइए भरते खवातीन हमारी माँ और बहनें मोहम्मदपुर के जितना जल्द हो सके उमड़ते हुए सैलाब के तशरीफ लाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम वक्त है। मगरिब तक आपकी बड़ी बहन आपके सामने है, आपको वो समझाएंगे दुनिया में जिंदगी किस तरह गुजारना है, दुनिया में जिंदगी किस तरह काटना है, शाम किस तरह गुजारना है, सुबह किस तरह गुजारना है। ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साथे। ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साथे। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। रियाज़े दीन के मासूम रुझे सुमों में कुफ्र से मुरझा रहे हैं, उन्हीं को ताजगी देने की खातिर ये वारिसे अंबिया आ रहे हैं। ये हमारी आलिमा व फाजिला बीवी शहनाज बेगम साहिबा रोका से आप लोगों की मोहब्बत में आई है। सिर्फ एक ही मोहब्बत है कि मोहम्मदपुर में जितनी भी बहन होगी उस बहन को हम समझाएंगे, बताएंगे, सुलझाएंगे कि मदरसा क्या होता है,
मदरसे के बच्ची क्या होता है, मदरसे का उस्ताद क्या होता है, मदरसे में क्या होता है। ये एक तरह से फैक्ट्री है जहाँ पर यहाँ से दीन का सिपाही तैयार किया जाता है, दीन का दरोगा को तैयार किया जाता है। क्यों? ये दरोगा कुरान की हिफाजत करेगा, दीन की हिफाजत करेगा, नमाज की हिफाजत करेगा, मदरसे की हिफाजत करेगा, मस्जिद की हिफाजत करेगा, मस्जिद में इमाम करेगा, तरावी कौन सुनेगा। ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से तमाम दीन की खिदमत करने वाले, हिफाजत करने वाले, जिस तरह एक थानेदार पूरे गांव को, पूरे ब्लॉक को, पूरे केनगर थाना को, आदमी को हिफाजत करता है, उसी तरह ये मदरसा एक फैक्ट्री है, यहाँ से वो सिपाही दरोगा निकलता है, वो दीन की हिफाजत करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप एक शेर के साथ आपकी बड़ी बहन को मैं दावत दूंगा कि तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, कि तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, खुदा की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। बोलिए आपकी बड़ी बहन आलिमा व फाजिला शहनाज बेगम साहिबा रोटा से आई है। ये आलिमा भी है, फाजिला भी है। इन्होंने 10 साल मुसल्ले पर रख करके कुरान को, हदीस को, सुन्नत को और अहमियत को जाना है। उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मोहम्मदपुर की धरती पर भेजा है। क्यों? सिर्फ दीन की बात सिखाएंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक शेर के साथ दावत सुबह दूंगा हमारे बड़ी बहन बीबी शहनाज बेगम साहिबा रोटा को कि तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कि तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तोरा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलिए सुभान अल्लाह। कि तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तो क्या सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अब वक्त नहीं है, हुजूम काफी बढ़ रहा है। देखिए आपकी बड़ी बहन आपके सामने आ रही है, वो क्या कर रही है, ये मदरसा क्या है।